Brothers and sisters, I'd like to share with you what God has taught me from His Word. And in the 55 years that I've been a believer, I'm 75 today, not today, I mean now. And in 40 of those years, 50 of those years I've been serving the Lord, 40 years we've been planting churches. We've tried to follow the Bible exactly, especially the New Testament. प्रिय भाई और बहनों, मैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में से मुझे सिखाया इन 50 सालों में, करीबन इस समय मैं 75 वर्ष का हूँ और जो कुछ परमेश्वर ने मुझे सिखाया अपने वचन में से बिल्कुल वैसा का वैसा नए नियम में से मैं सिखाना चाहता हूँ. I'm sorry, I forgot your word. Okay. Let's turn to Proverbs in chapter 24. आइए हम नीति वचन 24 अध्याय निकालें. Please meditate as we read from verse 30 to 34. और खास करके आप ध्यान मनन करें जब हम यहाँ पे 30 से लेके 34 तक हम वचन पढ़ेंगे. I will just read it in English. और आप जो है अंग्रेजी में पढ़ेंगे. You can please follow in your Hindi Bibles. और आप लोग हिंदी वचन को पढ़ सकते हैं. Proverbs 24 verse 30. और 24 नीति वचन 24 उसका 30वां वचन. I passed by the field of the sluggard and by the vineyard of the man lacking sense. And behold, it was completely overgrown with thistles. Its surface was covered with nettles. Its stone wall was broken down. When I saw, I reflected upon it. I looked, and I received instruction. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and your poverty will come as a robber, and your want like an armed robber. What we read here is something that we have seen very commonly. और हमने जो यहाँ पे देखा है वो बिल्कुल साधारण तौर से हम देखते हैं वो वस्तु हमने पढ़ा है. What we have seen here in Proverbs 24 and verse 30 is what we have seen around us. और जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं. You can see so many fields which are like this, destroyed by nature. और हम देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे खेत हैं जो कि बिल्कुल प्राकृतिक तौर से नाश पड़े हुए हैं. But when you see a beautiful garden, well maintained, you know that somebody took care of it. जब आप कोई खूबसूरत बागीचा देखते हैं तो आप ध्यान कर सकते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति ने उसका देख रेख रखा है. If you leave that garden alone, doing nothing for 1 year, it becomes a wilderness. अगर जो वही बगीचा का कोई देखभाल ना करे तो एक साल में वो बिल्कुल जंगल जैसा हो जाता है. And that's what's written here. और वही यहाँ पर लिखा हुआ है. And this is a description of what has happened to Israel and the church through these 4 centuries. और ये 4,000 years. और ये 4,000 वर्षों में इज़राइल और जो कलीसिया के अंदर जो हो रहा है या हो चुका है वो उसके बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है. The nation of Israel started in Canaan or from Abraham about 4,000 years ago. और करीबन 4,000 साल पहले इज़राइल का उत्पत्ति या आरंभ अब्राहम के द्वारा हुआ. And when they came into the land of Canaan in the time of Joshua, it was like a beautiful garden. और जब योशुआ के समय में वो जब कनान देश में प्रवेश किया उस समय बहुत खूबसूरत बगीचे के समान था. But by the time Joshua died, और जब तक जोशुआ मर गया and the other elders also died, और उसके बाद जितने वहाँ के बड़े बुजुर्ग थे उनके गुजरने के बाद you read in the whole book of Judges that it was a wilderness. और उसके बाद न्यायों की किताब में हम पढ़ते हैं कि वो बिल्कुल जंगल के समान And हो there was गया a reason for that. था. और उसके पीछे एक कारण है. And that reason is described in the last verse of the book of Judges. और न्यायों के आखिरी किताब में उसका कारण वहाँ पे लिखा हुआ है. Everyone did, that is Judges, and the last verse, which is chapter 21 verse 25, everyone did whatever was right in his own eyes. और वहाँ पे 21 के 25 में न्यायों 21 के 25 में लिखा है हर एक व्यक्ति ने अपने आंखों में जो सही लगा वही काम किया. So remember that phrase. Everybody did
whatever they thought was right. यानी कि जिसको जो ठीक सूझ पड़ा उन्होंने वैसा का वैसा किया। That is the way a garden becomes a wilderness. और यही कारण है कि एक बगीचा एक जंगल बन गया। And then God began a work through David और उसके बाद परमेश्वर जो है दाऊद के द्वारा बात and करने लगा established the kingdom. और उसके बाद उस देश को वहाँ पे बनाया। And he was a man after God's own heart. He made a few mistakes. और उसने बहुत सारी गलतियां की, उसके बावजूद वो परमेश्वर के हृदय को जानने वाला एक व्यक्ति And then he था। handed over to his son. और उसके बाद उसने अपने बेटे को सौंप And दिया। Solomon started very well. और सुलेमान ने बहुत ही अच्छे तरीके He से आरंभ had किया inherited a beautiful garden from his father. और उसने विरासत में अपने पिताजी से उस बहुत खूबसूरत बगीचे को पाया। But very soon he drifted. लेकिन उसके बाद वो जो है पीछे गिरने He लगा। started in such a humble way. Oh God, I'm a child. I don't know. Please give me wisdom. और उसका आरंभ में उसने एक बच्चे के समान बिल्कुल हलीम होकर उसने जो है परमेश्वर के सामने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, तू मुझे सिखा। But very soon he went away, लेकिन उसके बाद वो वहां से खिसकता गया drawn away by two things: और दो चीजों से वो पीछे की ओर चला गया, women and money. एक है स्त्री और दूसरा है धन दौलत। It has been the downfall of Christian leaders through 2000 years. और यही 2000 साल से जो है मसीह अगुओं का भी यही कारण बन रहा है। And one more, pride. और घमंड। These are the three things. और ये तीन चीजें। And gradually that Israel became a wilderness. और उसके बाद जो इजराइल देश है वो बिल्कुल जंगल के समान हो Not गया। in the eyes of the world. केवल संसार के नजर में In the नहीं, eyes of the world, it was one of the richest countries. और संसार की नजरों में वो सबसे धनाढ़ी एक देश है। Solomon was the richest king in the world. और सुलेमान जो है दुनिया का सबसे You know, अमीर एक राजा। Just like today, we see magnificent, huge churches that have TV programs जिस प्रकार से आज के बड़े बड़े कलीसियाओं को देखते हैं जहाँ पे And टीवी प्रोग्राम होते whose हैं preachers are like film stars. और फिल्म स्टारों की तरह वहाँ के अगुए And होते हैं huge structures which they call their church buildings. और बहुत बड़ा इमारत होता है जो कि वो उनकी कलीसिया कहते हैं, Just like Solomon's empire. जैसे सोलोमन बादशाह का जो राज्य था वैसा। But in God's eyes, a wilderness. लेकिन परमेश्वर की नजर में वो एक जंगल था, Spiritually a wilderness, materially a palace. आत्मिक तौर से एक जंगल, लेकिन जो वस्तु So- तौर से वो बहुत ही धनाढ़ी जगह है। So when believers don't have spiritual eyes, they see the palace. और जब आत्मिक लोगों के आत्मिक आंखें नहीं खुलती है या उससे नहीं देखते हैं तो उनको वो एक महल लगता But if you है। have spiritual eyes, you see the wilderness in the midst of all those fantastic structures. लेकिन आत्मिक दृष्टि से अगर जो देखें तो उस महल के बीच में भी उनको वो जंगल नजर And आएगा। you see the wilderness in the midst of all those expensive TV programs. और इन सब महंगे टीवी प्रोग्राम के बीच में भी उनको जंगल नजर आएगा। And you're not impressed by the film star like preacher. और जो फिल्म स्टार की तरह जो प्रचार करते हैं उनसे आप खुश नहीं होंगे। But there are very few people who have spiritual eyes. लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनकी आत्मिक आंखें That हैं। has been true throughout history. और वो इतिहास में ऐसा ही चल रहा है। So people in Israel couldn't understand what was wrong with Solomon. और इजराइल के लोग नहीं समझ पा रहे थे कि सुलेमान से क्या गलती हो रही What है does it matter if he had many wives? और क्या बुरा बात है कि उसके बहुत सारी बीवी है। David had many wives. दाऊद के भी बहुत सारी बीवी Abraham थे had many wives. और अब्राहम के बहुत सारे बीवी थे। Yeah, but there was a difference between Solomon compared to David and Abraham. लेकिन तुलना अगर जो करे डेविड और अब्राहम से तो सुलेमान का बहुत ही भिन्न है And very few people could see it. और बहुत कम लोग उसको पहचान सकते हैं। And Israel declined. और इजराइल देश जो है वो नीचे की ओर And गया then God would now and then send a prophet, और वहां पे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने भेजा, Elijah. एलिया को भेजा। One man. एक व्यक्ति He stood against all the false prophets. और वो हर एक झूठे भविष्यवक्ताओं के खिलाफ खड़ा हुआ Even the king was terrified of him. और यहाँ तक कि राजा भी उससे भयभीत था। And in one day he turned the nation back to God. और एक ही दिन में उसने पूरे देश को परमेश्वर की ओर फेर लिया। But it didn't last long. लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहा, And again it went down. लेकिन उसके बावजूद फिर वो जो है पीछे की ओर गया Elisha followed him, और एलिशा उसके पीछे हो लिया, but Israel declined. लेकिन उसके बावजूद इजराइल जो है गिरता गया। If you read the book of Kings and Chronicles, अगर जो आप इतिहास की किताब और राजाओं की किताब पढ़ेंगे every now and then there'd be a good king, तो वहाँ पे देखते हैं कि कभी कभी वहाँ पे एक अच्छा राजा आता है, like Hezekiah जैसे कि एजकिय्याह or वगैरह, Josiah, जोशिय्याह, but then they would again go down. लेकिन उसके बाद फिर वो पाप में गिर It was जाते a हैं। constant history of somebody building up a garden
and the next generation it becomes a wilderness. और लगातार ऐसा ही हो रहा है कि एक व्यक्ति आता है, वो बगीचे को बनाता है, फिर वो जंगल की तरह बन जाता है। Just like we read in that Proverbs chapter where people go to sleep spiritually. जैसे कि हमने नीति वचन में देखा कि आत्मिक तौर से लोग निद्रा में चले जाते And then a हैं, person goes to sleep, the garden becomes a wilderness. और जब लोग निद्रा में चले जाते हैं तो बगीचा जो है जंगल बदल जाता So है। God finally warned them through Jeremiah, और यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने उनको एक चेतावनी who दिया spoke to him for 40 years और 40 साल तक बात किया उसके द्वारा, and said, if you don't listen to me, I will send you as captives to a strange land. और परमेश्वर ने कहा अगर जो तुम मेरे वचन को नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, तो मैं तुम्हें गुलाम करके भेज दूंगा। They didn't listen. और उन्होंने नहीं They सुना, would throw Jeremiah into a pit, और उन्होंने यिर्मयाह को एक खड्डे में डाल दिया। slap him, put him, trouble him in so many ways. हाँ, मारा पीटा और बहुत तरीके से उसको परेशान किया। Stephen said to the chief priests in Acts 7, which of the prophets did you not persecute? और स्तेफानोस ने जो है प्रेरितों के काम ने बोला कि तुमने कौन से भविष्यवक्ता को छोड़ा है या बगैर That उसको means- ताड़ना दिए छोड़ा है। Those words indicate that in the entire history of Israel, every prophet was persecuted. इसका मतलब ये कि पूरे इतिहास में इजराइल में ऐसा ही दोहराते रहे, हर एक भविष्यवक्ताओं को वो परेशान करते थे, Because the prophets did not speak to tickle people's ears. क्योंकि वो जो भविष्यवक्ता लोग हैं वो किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं बात The करते थे, prophets did not fool around with women. और वो जो है औरतों के साथ नहीं घूमते थे, They did not want money. और उनको धन दौलत की जरूरत They नहीं, would live simply. और वो बिल्कुल साधारण तौर से जीते हैं। Even if a rich Syrian general like Naaman would come and offer money, Elisha would say, I don't want one pie of that. और सीरिया के जो है बड़े जनरल भी आ जाएं तो भी उनसे जो है, जैसे नेमान आया तभी एलिशा ने उनको मना कर दिया पैसे लेने He के लिए, didn't even go out to meet him. और उससे मिलने के लिए भी नहीं गया। These prophets didn't care for big people or rich people. और ये भविष्यवक्ता लोग जो है बड़े धनाढ्य व्यक्तियों की जो है उनसे ज्यादा वो नहीं रखते, That is स्थालुका। very rare in Christendom today. और आज मसीह दुनिया में ऐसा बहुत कम पाया When जाता I है। was a young Christian, जब आप एक जवान मसीह थे newly converted, और नए नए मसीह में आए थे, and I looked around at the different churches, और मैंने भिन्न भिन्न कलीसियाओं को देखा, see, because I grew up in a Syrian Orthodox church, क्योंकि आपका पालन पोषण सीरियन ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में हुआ, and then I came to all these believers, evangelical groups, और उसके बाद विश्वासी या इवेंजेलिकल ग्रुप में आए, and I saw one thing that was common in all of them. और फिर मैंने एक ऐसा वस्तु पाया जो See, सब कलीसिया में है, I mean, there's a lot of difference in doctrine between the Catholics and the CSI, और सिद्धांत में जैसे डॉक्ट्रिन कैथोलिक वगैरह है उनमें भिन्नता है, or CSI or Pentecostal brethren. There are a lot of differences in doctrine. भिन्न भिन्न कलीसियाओं में भिन्न भिन्न जो है सिद्धांतों में फर्क है। But when I looked around, keeping my eyes open, I saw something. लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोल के दूसरे कलीसियाओं को देखा तो मैंने एक चीज सीखा, I saw that in every church, those who were rich, educated, and in good positions would always be the board members. तो मैंने एक चीज पाया कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति जो है वहाँ के बोर्ड मेंबर्स रहेंगे। If there was a senior police officer in a church, he would definitely be a board member. अगर जो कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर रहेगा तो वो वहाँ का बोर्ड मेंबर जरूर रहेगा। And I said, Lord, what is this? तो मैंने परमेश्वर से पूछा ये क्या है? Is all these rich people only are spiritual? क्या ये अमीर धनाढ्य व्यक्ति ही केवल आत्मिक लोग हैं? There's no difference between the Catholic and the Pentecostal, and it comes to that. और इसका मतलब कैथोलिक कलीसिया और पेंतिकोस्त में कोई फर्क नहीं Some रहा। people say we are baptized in the Holy Spirit, but what did the Holy Spirit teach you? हाँ, यहाँ पे बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा क्या The सिखाती है? brethren would say New Testament pattern, but it was the same story there. और ब्रदरन कलीसिया में जाएं और वो नए नियम का पालन करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी यही कहानी दोहराया जाता है। I'm not criticizing anybody, I'm just telling you what I observed. मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन जो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ। And if you don't believe it, just go around and check even today. अगर जो आप विश्वास नहीं करते हैं कि आप जरा जाकर देखिए, आपको भी यही मिलेगा। But that wasn't Jesus. Group was not like that. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो समूह था वो ऐसा नहीं था। Jesus had unlearned fishermen who were some of his chief leaders. और प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो मछुआरे थे, मच्छी पकड़ने वाले थे। They knew God. लेकिन वो परमेश्वर को जानते थे। They didn't just speak in tongues. और वो अन्य भाषा में बात नहीं करते They थे। knew that was not the main thing for them. और वो समझते थे कि वो नहीं है उनके लिए प्रमुख They knew चीज। God, that was the main thing. और उनके लिए प्रमुख बात था वो कि वो परमेश्वर को जानते थे। And they knew, like it says in James chapter 2, God has chosen the poor of the world rich in faith. और याकूब की किताब दूसरे अध्याय में जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने जो है संसार के मूर्खों को चुना है ताकि लज्जित करे बुद्धिमानों को। I was young, 20, 21 years old. और उस समय मैं जवान था, 21-22 साल का। Who was I to question all these great big people? और इन महान लोगों से प्रश्न करने का मैं कौन हूँ? But I observed it. लेकिन मैंने ये ध्यान दिया। And I said, Lord, if ever in my life
I have any responsibility in a church, I will never do it like this. और मैंने ये निर्णय लिया कि अगर जो मेरे को कोई भी जिम्मेदारी कलीसिया में मिलता है तो मैं इस प्रकार से नहीं करूंगा। Not that I will favor the poor, ऐसा नहीं कि मैं गरीबों का साथ दूंगा, that will also be wrong. और वो भी गलत है, But I will value those who are godly लेकिन मैं उनको मूल्य दूंगा जो परमेश्वर ईश्वरीय भक्त हैं and humble, और जो नम्र हैं। and it make absolutely no difference to me whether they are poor or rich, और ये मेरे को कोई भी जो है भिन्नता नहीं मेरे अंदर होगा कि वो अमीर है या गरीब है, or whether educated or not educated. या पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। So that's what these prophets stood for in the Old Testament. और पुराने नियम में ये भविष्यवक्ता लोग इसी के लिए खड़े रहे। Finally, आखिर में God sent Israel to Babylon. और बेबीलोन देश में जो है गुलाम बनाकर परमेश्वर ने भेज दिया इस्राएलियों को। Israel and Jerusalem became a wilderness. और यरूशलेम जो है बिल्कुल जो है जंगल की तरह हो But गया। after 70 years, और उसके 70 साल के बाद God started a movement back to Jerusalem from Babylon. और बाबिलोन से जो है उनको इजराइल की ओर वापस लेकर आने लगे। It started with Daniel praying. You read in chapter 9. दानियल के किताब 9वें अध्याय में देखते हैं कि दानियल के प्रार्थना के द्वारा वो आरंभ And हुआ। other men of God like Ezra, Nehemiah, और एजरा और नेहमाया ने भी वो Haggai, Zechariah, हगाई ज़करिया ये सब प्रार्थना करने they लगे came back और वो वापस लौटे। and again started making Israel a garden. और उसके बाद उन लोगों ने फिर से इजराइल को एक बगीचा बनाने And they लगे built the temple. और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के मंदिर का The निर्माण किया। Lord said to Haggai, through Haggai, हगाई के द्वारा परमेश्वर ने बात किया the glory of this latter house will be greater than the former. और पिछले परमेश्वर के मंदिर से ज्यादा परमेश्वर की महिमा अब नए मंदिर में उतरेगा करके। But it lasted about 150 years, और ये केवल 150 साल तक रहा or probably 100 years. या फिर 100 साल तक। Again, people went to sleep spiritually, and the wilderness started taking over the garden. और उसके बाद फिर से लोग जो है निद्रा में चले गए और जो बगीचा है वो जंगल के रूप में बदल गया। And the same thing happened in Christianity. और यही मसीह लोगों के बीच में भी We must learn from the examples and failures of people in the past. और हमें पूर्व लोगों के हार पराजय से हमें सीखना चाहिए। You see, this is how science has progressed. और इसी प्रकार से हमारा विज्ञान बड़ा है। Each scientist is standing on the shoulders of some other scientist who has discovered something. हम देखते हैं कि जिस किसी वैज्ञानिक ने खोज किया है वो एक दूसरे वैज्ञानिक के जो है कंधे पे खड़ा होके जो है विजय प्राप्त The करता next है। generation stands on the shoulders of that one. और अगला जो आता है पीढ़ी वो उसके कंधों पे खड़ा होता है। So they can see further and further and further in science. और ताकि वो जो विज्ञान के तौर से वो और दूर तक देख सकें। They've learned from the mistakes of the past. और उन्होंने जो पिछले जो हार है उनसे पराजय हैं उनसे उन्होंने सीखा। Airplanes were discovered through people trying to make airplanes for 300 years. और 300 साल से लोग जहाज बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा बनाते कई बार उनको विफलता मिली, They फिर उन्होंने learned बनाया। why did they fail, क्यों वो विफल हुए? and they learned better. और ताकि वो और अच्छा सीख सके। But it's only Christians who seem never to learn from the failures of the past. लेकिन मसीह लोग ऐसे हैं जो कि बीते हुए हार से नहीं सीखते हैं। I mean, just what I've described now to see why did Israel fail. और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि क्यों इजराइल विफल हुआ या Now पराजय you take हुआ। now the Christian church. अभी हम मसीह कलीसिया को The देखेंगे। Acts of the Apostles was just like the book of Joshua. और जोशुआ के किताब के समान ही प्रेरितों के समय में थे। It was a mighty movement of God. और परमेश्वर का महान वहाँ पे कार्य होता था। Genuine fullness of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की भरपूरी थी। See, even this fullness of the Spirit, which is the most valuable thing in Christianity, और पवित्र आत्मा की जो भरपूरी सबसे प्रमुख चीज है जो कि मसीह जीवन में, has been counterfeited. और वो भी देखो वहाँ पे मार खाया। You know, when I talk about being filled with the Spirit, baptized in the Holy Spirit, and the gifts of the Holy Spirit, और जब मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या वरदान के बारे में बात करता a हूँ, lot of people say, Brother Zach, there are so many counterfeits. तो बोलते हैं कि उसके बहुत सारे विरोधी भी हैं। I said, absolutely right. मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही। Isn't there counterfeit gold? क्या सोना उसका भी नकली नहीं है क्या? Isn't there counterfeit diamonds? क्या जो डायमंड है उसका भी, हीरा है उसका भी नकली है? Aren't there counterfeit 1,000 rupee notes? और 1000 रुपए का भी नकली नोट है। Nobody counterfeits brown paper and newspapers. हाँ, कोई भी अखबार का पेपर जो है उसका कोई नकली नहीं बनाता है। Have you ever found a counterfeit Times of India? क्या टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई नकली पेपर आपने देखा है? Who will waste money making a counterfeit कौन newspaper? अपना पैसा खर्च करेगा नकली ऐसे What do अखबार you निकालने के लिए? learn from that? इससे हम क्या सीख सकते हैं? Only valuable things are counterfeited. केवल बहुमूल्य चीजों का ही नकली पदार्थ बनाया जाता है। Nobody counterfeits cheap things. और कोई भी सस्ते चीजों का कोई नकली चीज नहीं बनाते। if
Holy Spirit and His gifts are counterfeit, then the original must be very valuable. हाँ, अगर जो पवित्र आत्मा का नकली कुछ निकल रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा बहुत ही कीमती चीज है। Being born again has been counterfeited. और यहाँ तक कि जो नया जन्म पाना, उसका भी नकली निकलता Water है। baptism is counterfeited. They have child baptism. That's a counterfeit. हाँ, जो पानी में डुबकी का बपतिस्मा है, उसके बदले जो है बच्चों को बपतिस्मा देना आरंभ किया, वो उसका नकली रूप है। Everything valuable in Christianity has been counterfeited. और जो भी मसीह जिंदगी में बहुमूल्य चीज है, उन सब का नकली चीज भी निकला है। The cheap things are not counterfeited. और जो बिल्कुल सस्ते चीजें हैं, उसका कभी भी So नकली चीज whenever I नहीं see a बना। counterfeit, I say, hey, the original must be pretty valuable. हाँ, जब कभी मैं नकली चीजों को देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि वो बहुत ही बहुमूल्य, उसका असली चीज। Speaking in tongues is counterfeited. और जो अन्य भाषा में बात करना, उसका भी नकली रूप I'll tell निकला you, है। I speak in tongues for nearly 40 years. और आप जो है करीबन 40 साल से पवित्र आत्मा में अन्य भाषा बोलते हैं। 95% of the tongues I hear in Pentecostal charismatic Pentecostal services is a counterfeit. लेकिन 95% जितने भी मैं पेंटिकोस्टल कलीसिया के अंदर अन्य भाषा सुनता हूँ, वो सब उसका नकली रूप है। People just babble a few words and say it's tongues. और कुछ शब्दों को वो निकालेंगे और फिर बोलेंगे कि ये जो है अन्य भाषा है। Tongues is a language. और जो अन्य भाषा है वो एक भाषा है। Even if you don't understand it, हाँ, हालांकि आप नहीं समझ पाते you होंगे can make out a language. वो, लेकिन उससे एक भाषा If निकलती है। somebody speaks here in Russian or Chinese, you can make out the man speaking a language, not babbling words. अगर जो यहाँ पे कोई रशियन या चाइनीज भाषा बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई एक भाषा बोल रहे हैं, केवल कोई शब्द नहीं उच्चारण कर रहे हैं। The gift of tongues has been so disgraced by the devil. और दुष्ट के द्वारा या शैतान के द्वारा अन्य भाषा का बहुत ही तुच्छ समझा गया That's just one example. और ये एक उसका एक उदाहरण है। Healing. There is genuine healing. Jesus heals today. और उदाहरण के तौर पे चंगाई, प्रभु यीशु मसीह आज भी चंगाई We देता have है seen it in our churches. और हमने अपनी कलीसियाओं में देखा है। But there's a lot of counterfeit. लेकिन उसका भी बहुत सारा नकली जो है चंगाई निकला हुआ है। The garden has become a wilderness. और जो अच्छा बगीचा है वो बिल्कुल जंगल हो गया है। Now some people just accept that. और कुछ लोग उसको जो है स्वीकार कर लेते You हैं। will not accept it if that is in outside your house. हाँ, वो आप स्वीकार नहीं करेंगे अगर जो वो आपके घर के बाहर हुआ है तो। If that wilderness was outside your house, you'd spend money and time and energy to make it a garden. अगर जो आपके घर के बाहर ऐसा हो रहा है तो आप उसके लिए समय निकालेंगे, पैसे निकालेंगे उसको बगीचा बनाने के I लिए। find that the concern that people have for their own house, they don't have for the Church of Jesus Christ. अपने घर के लिए जो उनके अंदर जो प्रतिनिष्ठा है वो दूसरे बाहर नहीं है, कलीसिया के लिए नहीं है। They'll spend so much time and money for their own house improvement, which they will not spend for the Church of Jesus Christ. और वो जो है अपना समय और पैसा बहुत ज़्यादा अपने घर के लिए जो है खर्च करेंगे, लेकिन कलीसिया के लिए नहीं करेंगे। And that's how it was from the beginning. और आरंभ से यही होता आ रहा है। So in the Acts of the Apostles started out so powerfully. और प्रेरितों के काम में प्रेरित लोग बहुत ही सामर्थ के साथ निकले। But by the time you come to Acts chapter 20, जब तक हम प्रेरित के काम 20वें अध्याय में आ जाते हैं, I'll give you one example. मैं एक उदाहरण दूंगा। The Apostle Paul tells the elders in Ephesus, और एफिसोस के जो लोग हैं उनको पौलुस कहता है, Acts chapter 20, प्रेरितों के काम 20वां verse अध्याय 17, he calls the elders of Ephesus. और 17 में जो है वहाँ पे एफिसियों के जितने बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बुलाता है And he tells them, और उनको कहता है, verse 31, I have been with you for 3 years. और यहाँ पे 31 में लिखा है कि मैंने 3 वर्ष से तुम्हारे साथ हूँ। And during those 3 years, day and night, I admonished you with tears every day. हाँ, और यहाँ पे लिखा है कि 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर मैं तुम्हें चितौनी देता रहा। That's how Paul preached. और पौलुस यही यहाँ पे प्रचार कर रहा है। He preached for 3 years, और day वो- and night, which means 2,000 sermons. और दिन रात वो प्रचार करता रहा, यानी कि लगभग 2000 संदेश दिया। And he never took 1 rupee or any money for that. लेकिन उसके लिए उसने कभी भी 1 रुपये भी नहीं लिया। Have you ever heard of a preacher like that today? क्या आपने कभी सुना है ऐसा प्रचारक को Who'd preach for 3 years, day and night, and never take any money? कि वो 3 साल तक प्रचार करे और कुछ ना ले? He says in verse 33, I did not desire any silver or gold or clothes from anybody. और वहाँ पे वो 33 में कहता है कि मैंने किसी से चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं He किया। did not hang around there waiting that somebody would give him a shirt or a pant or और something. वो वहाँ पे इंतजार में नहीं रहा कि लोग वहाँ पे पैंट शर्ट देंगे He करके। says in verse 34, I worked with my own hands. और 34 में लिखा है कि मैं अपने हाथों से काम I करता took हूँ care of my own needs. और मैं अपनी जरूरतों को अपने आप ही देखभाल करता हूँ, आवश्यकता को पूरी करता These were हूँ। the type of apostles the Lord chose in the first century. और पहली शताब्दी में इसी प्रकार के प्रेरितों को परमेश्वर ने चुना। But now we have merchants who
sell Christianity for money. लेकिन आज के ज़माने में हम देखते हैं कि हमारी कलीसियाओं में सौदागर है जो मसीहत को सौदा करते हैं। Even if they sing, they want to be paid for it. अगर जो वो गाना भी गाते हैं तो उसके लिए भी वो पैसा चाहते हैं। But he says here in everything, verse 35, I showed you by working hard that we must help the weak and remember the words of Jesus. और यहाँ 35 में कहता है कि मैं सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। Then he says these words of Jesus which are not found in the Gospels. और उसके बाद लिखता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के जो वचन जो कि सुसमाचार में नहीं है, It is more blessed to give than to receive. और वहाँ पे लिखा है कि ये बहुत ही धन्य है जो देता है ना कि लेता है। There's nothing wrong in receiving a gift. और लेने तोहफा लेने में कोई बुराई बात नहीं, बुरी बात नहीं। Jesus received gifts. और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं लिया है Many apostles did. और प्रेरितों ने भी किया है। But he says here there's a greater blessing when you learn to give. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आपको ज्यादा अधिक आशीष मिलेगा अगर जो आप देंगे। And that is what Christians haven't learned. और यही चीज मसीहियत लोगों ने नहीं सीखा They're है। satisfied with the lower blessing of receiving. और वो छोटे आशीषों से तृप्त हो जाते हैं जो कि लेने They में। come to Jesus to receive. और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं लेने के लिए। Lord, I want forgiveness. Give me that. कि प्रभु यीशु मुझे माफी चाहिए, मुझे दो। You know, like the prodigal son came to his father and he had two words. जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आया, उसके पास दो ही शब्द थे। Father, give me. हे पिता मुझे दे, Give me. मुझे दे। This hand stretched out. और उसके हाथ फैले हुए थे। And when I get what I want, और जब मुझे मिल जाता है जो मुझे I चाहिए, go and spend it not for the father but for myself. और जो मुझे मिल जाता है तो मैं उसको जो है उड़ाऊंगा अपने लिए, परमेश्वर के लिए नहीं। That is the mark of every prodigal son even today. और यही निशानी है, चिन्ह है हर एक उड़ाऊ पुत्र We का। come to Jesus and say, give me. हम परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे दो। And we get money. और जब हमें पैसे मिलता है People say, God has blessed me. और हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे I got a आशीष job. दिया और मुझे नौकरी I got a मिली, promotion. मुझे प्रमोशन I got an मिला increment. और मेरी जो I तनख्वाह है वो बढ़ गया got more wealth. और मेरे पास ज्यादा धन दौलत आ गया My father's inheritance has increased in wealth. और मेरे पिता के पास जितना विरासत में है वो सब बढ़ God गया has है। blessed me. परमेश्वर ने मुझे आशीष What do you दिया। do with it? अब क्या करेंगे? Go and spend it on yourself. और आप अपने ऊपर वो उड़ाते हैं। I don't care how spiritual you think you are. You're a prodigal son. हाँ, मैं नहीं जानता आप आत्मिक तौर से कैसे हैं, लेकिन अगर जो ऐसा करते हैं तो आप एक उड़ाऊ पुत्र के समान Or हैं। spiritual gifts. और जितने Oh God, give me a gift. आप परमेश्वर से कहते हैं कि तू वरदान, God gives आत्मिक you a वरदानों को gift. दे, और वरदान मिलने के बाद And I use it for myself. और उसके बाद हम अपने लिए इस्तेमाल To get करते honor हैं for myself. ताकि हम खुद सम्मानित हो। To go and make money with that gift for myself. और परमेश्वर से जो हमने प्राप्त किया है उसके द्वारा हम और पैसे धन दौलत These are इकट्ठा the करें। prodigal children with which Christendom abounds today. और यही ऐसे उड़ाऊ पुत्र के द्वारा जो है हमारी कलीसिया जो भरी हुआ है। I've said that for 40 years. और मैंने 40 साल तक ये बताया। And because I've said these things, people have called me false teacher and all types of things. और ये बताने के कारण लोग मुझे जो है गलत शिक्षा देने वाले शिक्षक करके कहा। That's what they call the prophets in the Old Testament too. और यही पुराने नियम में भी जो है भविष्यवक्ताओं को वो लोग But कहते it थे, is so clear. लेकिन ये बिल्कुल साफ है। And then Paul says here, और उसके अपोलोस कहता है, he says, now I'll tell you elders. लेकिन उसके बाद कहता है कि He मैं आपको बताता was हूँ। speaking to the elders in verse 17. और वहाँ पे 17 में I जो don't है know. बुजुर्गों से कहता I है, don't know how many there, maybe 5 or 6 elders of Ephesus sitting there. हो सकता है कि 5-6 वहाँ पे बुजुर्ग बैठे हों। And he said, I want to tell you something. मैं बताना चाहता हूँ कुछ। I know, verse 29. और 29 में लिखा Now हुआ है, I've been 3 years in Ephesus in this church. और इफिसियों में 3 साल से मैं यहाँ पर हूँ, After I leave, और मैं यहाँ से जाने के I know बाद what's going to happen. मैं जानता हूँ क्या होगा। There are savage wolves who will come in. और यहाँ पे फाड़ डालने वाले भेड़िए हैं जो कि अंदर आएंगे। They're just waiting at the door. वो बिल्कुल द्वार पर खड़े हैं। Why couldn't they come in during the 3 years Paul was there? जब पौलुस वहाँ पे था 3 साल तक वो लोग क्यों नहीं भीतर आए? They said, we can't get into this church as long as Paul is there. उन्होंने कहा कि जब तक पौलुस यहाँ पे मौजूद है हम उस कलीसिया में नहीं प्रवेश कर सकते। He has such strict standards, we won't survive there. हाँ, उसके पास ऐसे ऐसे तरीके थे कि वहाँ पे हम वहाँ पे नहीं जी सकते। He has such discernment that he will detect us as wolves and drive us out. हाँ, उसके पास ऐसे पहचानने की शक्ति है कि वो हमें पहचान लेगा कि हम भेड़िए हैं और हमें बाहर निकाल देगा। But those wolves said, well, we know that Paul's not going to be there forever. और वो भेड़ियों ने कहा कि हम जानते हैं पौलुस यहाँ पे हमेशा नहीं रहेगा, He's getting old. वो बूढ़ा हो रहा है, He'll go. वो जाएगा। And we are waiting for that day. और हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। Then we can go right in. और उसके बाद हम सीधे भीतर जाएंगे। These elders, other elders, we can handle all of them. और ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं उन सबको हम देख लेंगे। And they were right. और वो बिल्कुल सही थे। Paul warned them.
और पौलुस ने उनको He says, चेतावनी not दिया only था, these wolves will come from outside into your church, और उसने केवल ये इतना ही नहीं कहा कि ये जो भेड़िए बाहर इंतजार कर रहे हैं वो केवल अंदर they आएंगे will so corrupt your spirit और वो तुम्हारी आत्माओं को बिल्कुल खराब कर देंगे, that you yourselves will start, verse 30, drawing some people after yourself and making your own little group. और वो तुम्हें इतना खराब कर देंगे कि तुम खुद अपने आप जो है लोगों को अपनी ओर खींचने लगोगे टेढ़ी मेढ़ी मार्गों से। Now it's one thing to leave a church because the doctrine is corrupt and you want to start something true to God's word. और कलीसिया को आप छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का सिद्धांत गलत है और आप सही सिद्धांत में लिए खड़े होना That is चाहते a हो, good thing. और वो बहुत ही अच्छी बात है। Throughout Christian history, there are people who have done that type of thing. और मसीह कलीसिया का इतिहास देखे तो कई लोगों ने ऐसा किया है। That's what Martin Luther did 500 years ago. Otherwise, we'd all be Roman Catholics today. और 500 साल पहले मार्टिन लूथर ने भी यही किया, नहीं तो हम सब कैथलिक होते। And that's what John Wesley did. और जॉन वेस्ली ने भी यही किया, He pulled people out of the Lutherans. और लूथरन कलीसिया से उसने लोगों को बाहर निकाला। And that's what many others did, taking people out of the different groups that had become corrupt. और जब लोग खराब हो जाते थे और सही सिद्धांत को नहीं पालन करते थे तब लोगों ने ऐसे ही किया, That's okay. वो सही है। But then there are other people who made a split and caused because they wanted to be the leader. और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को अगुवा बनाना चाहते हैं, इसलिए लोगों को अपनी ओर खींच लिया, Those are the ones Paul is speaking about. और उनके बारे में यहाँ पे पौलुस कहता है, And that's what happened. और यही हुआ। So when you come to Revelation chapter 2 and chapter 3, जब आप प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय या तीसरे अध्याय में आते हैं, this is the condition of Christianity in around 95 AD. और 95 AD में ईसा पूर्व में यही हुआ था, That is about 65 years after the day of Pentecost. और पेंतिकोस के 65 साल के बाद। So if the day of Pentecost was like Joshua, और book of Joshua. जो पेंतिकोस का जो दिन है वो यहोशू के किताब के समान है, Revelation chapter 2 and 3 is like the book of Judges. और प्रकाशित वाक्य 2 और 3 जो है वो न्यायों की किताब के तुलना में है, Where 5 out of the 7 churches are corrupt. और यहाँ पे देखते हैं कि 7 में से 5 जो कलीसियां हैं वो सही नहीं है, They've gone away from the standards the apostles laid down. और जो मानदंड रखा गया था प्रेरितों के द्वारा उनसे वो बहुत दूर And खिसक गए। the first in that list is this Ephesus church to whose elders Paul had warned. और वो पहली कलीसिया वो है एफिसुस की कलीसिया जिनको पौलुस प्रेरित ने चेतावनी दिया था। See, this is about maybe 35 years after Paul warned them in Acts chapter 20. ये करीबन 35 साल यानी कि पौलुस के चेतावनी देने के 35 साल के बाद हुआ। See the condition of the church. यहाँ पे देखिए कलीसिया की परिस्थिति। Yeah, you still do so many good things. हाँ, वहाँ पे लिखा है कि हाँ तुम अच्छी बातें करते हो, You are still holding true to the doctrine और सिद्धांत में खड़े हो, and you're driving away the false apostles. और जितने गलत शिक्षा लेके आते हैं उनको बाहर Acts निकालते 2 हो, verse 3, you got perseverance, you endured for my name's sake. और तुम मसीह के लिए जो है टिके हुए धीरज Yeah. तुम्हारे अंदर है, All that was okay. ये सब सही है, But you have left your first love. लेकिन तुम अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Once upon a time you loved me more than anyone else, Jesus says. और एक ऐसा समय था, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तुम सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते थे, And then you became a little rich. और उसके बाद तुम थोड़े से धनाढ़े हो गए, So then you loved me and you loved your job and your money also. और उसके बाद तुम मुझसे प्रेम करते हो साथ में अपनी नौकरी और अपने पैसे से भी, And gradually 90% was your money and your job. और उसके बाद 90% तुम्हारी नौकरी और तुम्हारा पैसा, 10% is me, says Jesus. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अब केवल 10% मुझे देते हो। It's like a woman who started out loving her husband completely. ये उस स्त्री के समान है जो अपने पति से बहुत अधिक बिल्कुल पूर्ण तौर से प्रेम But a करती few है, years later, she begins to get interested in other men. और कुछ सालों के बीतने के बाद वो दूसरे पुरुषों के साथ And जो है, after some time, she's और- more interested in those other men. और उसके बाद कुछ साल और बीतने के बाद दूसरे पुरुषों के साथ उसका ज्यादा But she संबंध still होने लगा। stays at home with her husband. लेकिन अभी भी वो लेकिन अपने ही पति के साथ है, That's what happened to the church, which is supposed to be the bride of Christ. और यही कलीसिया के साथ भी हो रहा है जो कि प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, And that's how it was the other churches too. और दूसरी कलीसिया भी इसी प्रकार से है। Revelation chapter 3 and verse 1, you have a name that you're alive, but you're dead. और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पहले वचन में देखते हैं कि तुम जीवित कहलाते हो पर तुम मरे हुए हो। How do you get a name that you're alive?
कैसे नाम मिलता है कि तुम जीवित होकर Your doctrines are all right. तुम्हारे सिद्धांत सही You है preach the baptism of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के You बपतिस्मा के बारे में exercise बताते the हो gifts of the Spirit. और वरदानों को जो है तुम इस्तेमाल करते हो And you're very active. You have conferences and meetings, और बहुत सारे कॉन्फ्रेंस मीटिंग हर चीज Lot में of- तुम सक्रिय हो evangelistic outreach. और दूसरों को सुसमाचार सुनाते हो, But godliness and holiness is not there. लेकिन पवित्रता या ईश्वरत्व आपके अंदर नहीं In है। your midst, the husbands and wives are still fighting with each other. इसका मतलब यह है कि पति पत्नी अभी भी लड़ते हैं And they're still, all the people in your church are more interested in money than in Jesus Christ. और कलीसिया के लोग जो हैं धन में ज्यादा उनका दिल लगा हुआ And है, प्रभु even- यीशु मसीह पर नहीं। And even the preachers are more interested in collecting money than in bringing people to a godly life. और जो मसीह का प्रचार करते हैं वो लोग भी ज्यादा पैसे पे ध्यान देते हैं, they have a name that they're alive. लेकिन उनके पास एक नाम है कि वो जीवित Because हैं। every year they have so many conventions and meetings, और हर साल जो है उनका बहुत सारा मीटिंग होता है, कन्वेंशंस होते हैं lot of activity. और बहुत सारे See, सक्रिय तौर से कार्य होता the है। way to get a name in Christianity is by activity. और अगर जो मसीह लोगों में नाम चाहिए तो बहुत सारे सक्रिय तौर से कार्य करने से मिल जाएगा, The way to get a name in heaven is by holiness. लेकिन अगर जो स्वर्ग में आपको नाम चाहिए वो है पवित्रता के द्वारा। So if you're interested in a name before God, you'd make your people holy. तो अगर जो आपको स्वर्ग में नाम चाहिए तो आप अपने लोगों को पवित्र करें। If you're interested in a name on earth, you'll be just active. अगर जो दुनिया में नाम चाहिए तो आप सिर्फ सक्रिय तौर से So कार्य God करें। says, you got a name on earth, but you're dead. हाँ, परमेश्वर कहता है कि संसार में तुम्हारा नाम है लेकिन तुम मरे हुए हो। And to another church he says, chapter 3 verse 16, I will spit you out of my mouth. और 3:16 में दूसरे कलीसिया से कहता है कि मैं तुम्हें मुंह में से उगलने वाला And हूँ। he tells that church, और उस कलीसिया से कहता है verse 20, और 20 में, I stand at the door and knock. मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। Look at the condition of this church, that Jesus himself is outside the door. यहाँ पे इस कलीसिया के बारे में देखें कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस द्वार के बाहर है। You think their doctrines were wrong? क्या No. आपको लगता है कि वहाँ का सिद्धांत गलत है? They were singing good songs, वो अच्छे गाना गाते हैं right doctrines, और सही सिद्धांत है, a lot of activity, बहुत सारे सक्रिय तौर से कार्य होता many है, pastors and youth pastors and all that. बहुत सारे पासवान लोग हैं, जवानों के पासवान हैं, But Jesus is outside the door. लेकिन प्रभु यीशु मसीह द्वार के बाहर है। So you see the same thing that we saw in the history of Israel, तो हम वही चीज को देखते हैं जो इज़राइल के इतिहास में हुआ। that the garden becomes a wilderness. यहाँ देखिएगा बगीचा एकदम जंगल हो गया, But some churches remained faithful. लेकिन कुछ कलीसिया ऐसे हैं जो वफादार बने रहे। For example, Smyrna, यहाँ के स्मरणा की कलीसिया, they were faithful. वो एकदम वफादार थे। They were poor, they were persecuted, but they were faithful. वो गरीब कलीसिया थी और उनको ऊपर ताड़ना पड़ी, लेकिन वो वफादार थे। Chapter 2 verse 8. और दो उसका 8 And then another church, Philadelphia, in chapter 3 verse 7. और 3 उसके साथ में फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में है। This was a church, verse 8 middle, chapter 3 verse 8 middle. They had very little power. और देखते हैं कि उनके पास बहुत थोड़ी सी सामर्थ है They didn't have great famous people in that church, और उनके कलीसिया में कोई महान लोग नहीं हैं, but they kept true to the word. लेकिन वो परमेश्वर के वचन में सच्चे उतरे। It says here, they did not deny my name. और वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह के नाम को जो है नकारा नहीं, इनकार नहीं And in किया। all these 7 churches, the Lord speaks about overcomers. और हर एक कलीसिया में जो है विजय प्राप्त करने वालों के बारे में कहा At है। the end of every one of those 7 churches, the Lord says, the overcomers, I have a message for you. और वहाँ पे जो भी विजय प्राप्त करेगा उनके लिए एक संदेश यहाँ पे दिया हुआ Those है। are the people who are concerned that the garden has become a wilderness. और वो लोग हैं जिन्होंने पहचान लिया कि हमारा जो बगीचा And है वो जंगल बन Who गया है, have a burden, how shall we make it a garden again? और जिनके अंदर बोझ है कि हम वापस उस जंगल को किस प्रकार से बगीचा बना सकते But they हैं। see the leaders and the most of the people in the church are not interested in that. लेकिन फिर भी वो लोग देखते हैं कि अगुए लोगों को ऐसा कोई चिंता नहीं है They are happy with the wilderness. और वो उस जंगल में रहने के लिए बिल्कुल खुश हैं, So long as they give a good impression to people, जब तक वो लोगों के सामने अच्छा प्रकट होते हैं। that's okay. हाँ, वो They're चलता not है bothered about what God thinks about them. और वो बिल्कुल चिंता नहीं करते कि परमेश्वर क्या सोच रहा है। And I want to say this, my brothers and sisters. मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और I बहनों, have traveled in almost every denomination in evangelical Christianity in India. और भारत के अंदर ज्यादातर कलीसिया जो इवेंजेलिकल कलीसिया उन सब के अंदर मैं In जा the चुका हूँ। last 50 years, और पिछले 50 साल I've में traveled from Kashmir to Kanyakumari, मैंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सफर किया Gujarat to Nagaland, और गुजरात से लेके नागालैंड तक, and I've seen one thing. लेकिन मैंने एक चीज देखा है,
people are interested in giving a good impression to others. और लोग हमेशा तैयार रहते हैं दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा प्रकट करने People में। must think well of our church. और लोग सोचना चाहिए कि हमारे कलीसिया के बारे में I ऊंचा। find very little fear of God. और मैंने बहुत कम परमेश्वर के भय को देखा And है। I'm sorry to say, I find very little clear, accurate understanding of Scripture. और मैंने बहुत कम परमेश्वर के वचन के ज्ञान को भी बहुत कम देखा है। And where some people know the Scriptures, they don't have the power of the Holy Spirit. और जहाँ पे उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। We need both. हमें दोनों की आवश्यकता Where है। some people emphasize the Holy Spirit, they don't know the Word of God. और जहाँ पे कुछ लोग पवित्र आत्मा को ज्यादा मूल्य देते हैं, उनके पास वचन नहीं है। See, for a railway train to move from one place to another, अगर जो रेल है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, it needs rails. उसको जो है पटरी की जरूरत है। And it needs power, diesel power or steam power or something. और उसके अंदर सामर्थ्य भी होना चाहिए, या तो डीजल सामर्थ्य, या तो तेल का सामर्थ्य, या फिर कुछ और। Which is more important? क्या कौन सा सबसे You ज्यादा tell me which जरूरत is है? more important for a train, rails or power? बताइएगा, रेलगाड़ी चलने के लिए किस चीज की आवश्यकता ज्यादा है, You need ईंधन both. की या फिर पटरियों There's की? no question of choice. You need both. हाँ, हमें दोनों चीज चाहिए। If you want to go from Bombay to Pune, you need rails and you need steam. अगर जो Or power. अगर जो आपको बॉम्बे से पुणे जाना है तो आपको रेलगाड़ी में सफर And करना है, तो दोनों चाहिए, The ईंधन भी चाहिए और पटरी भी rails चाहिए। are a picture of God's Word. और जो रेल है, पटरी है, वो परमेश्वर के वचन को And दिखाता I'll है। tell you, if those rails are not absolutely parallel, if they're even slightly deviated at some place, the train will get derailed. और मैं बताना चाहता हूं कि पटरी जो है हर जगह एक समान दूरी उनमें होना चाहिए। अगर जो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो वो पटरी से उतर जाएगी। Those people who lay the rails don't say what many preachers say. It doesn't matter if it's slightly different. और जो पटरी बिछाने वाला कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि कोई बात नहीं, ऐसा चलता है करके, जैसे मसीहा गुए लोग बोलते That's हैं। what preachers say. It's almost parallel. It doesn't matter if it's exact. हाँ, जो प्रचारक है वो बोलते हैं कि हाँ समांतर दूरी में है, लेकिन कोई फर्क नहीं That's पड़ता। why the church is derailed. इसीलिए कलीसिया जो है पटरी से उतरा And हुआ है, that's why the trains are not derailed. और इसीलिए रेलगाड़ी पटरी से नहीं They have उतरता, more sense. क्योंकि उनके अंदर ज्यादा जो है विवेक है। At the same time, उसी समय if you have only got the rails अगर जो केवल पटरी है, and you come every Sunday morning and polish the rails, अगर जो हर सुबह इतवार को आएंगे और सिर्फ पटरी को and चमकाएंगे, there's no power in the engine, और बिल्कुल इंजन में ईंधन नहीं है, सामर्थ्य नहीं you're in है, the same place every Sunday. तो हर इतवार को आप एक ही जगह में There's no रहेंगे, progress. कोई आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं होगी। That some churches are like that. और कुछ कलीसियां इसी प्रकार की है, They've got the rails, but no progress. उनके पास पटरी तो है लेकिन कोई उन्नति नहीं Then है। there are other people who say the rails are not important. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पटरियों को बिल्कुल It's प्रमुखता the नहीं Holy देंगे, Spirit that's important. वो बोलेंगे पवित्र आत्मा ज्यादा प्रमुख They're है। like people who got a lot of steam or diesel power. और वो उस प्रकार के लोग हैं जिनके अंदर बहुत But अधिक ईंधन They है, don't care for the rails. और वो पटरियों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, That train is also stuck. और वो भी जो है बिल्कुल अटक जाता है। But they can blow the whistle, make a lot of noise in those churches. हाँ, वो कलीसिया इस प्रकार की कलीसिया जो बहुत शोर मचा सकती है। That no shortage of that. You can, when you're not running on the rails, you can make a lot of noise on the steam, हाँ, जब आप पटरी पे नहीं चल रहे हैं तो बहुत आवाज बना सकते हैं, but it's not moving. लेकिन वो चलता नहीं है। I'm not impressed by noise. और मैं भी जो है उससे ज्यादा खुश नहीं हुआ जो आवाज निकालते I'm हैं, not impressed by polished rails. और पॉलिश्ड पटरियों से भी मैं खुश नहीं हुआ। I want a train that's going from A to B, लेकिन मैं एक ऐसी रेलगाड़ी से खुश होता हूँ जो एक जगह से दूसरी जगह खिसकता which is है, moving all the time. वो जो हमेशा चलता रहता I want है। a church that's progressing, मैं चाहता हूँ वो कलीसिया जो हमेशा बढ़े which is not becoming like a wilderness. और जो जंगल की तरह नहीं बनता। So, I've taken you now from all the way from the history of Israel through the history of the church. और ये पूरा इतिहास इजराइल का देख के मैंने कलीसिया का इतिहास से जोड़ा, And the reason I say that is because that's what's happened in 2000 years of Christianity. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यही हुआ कलीसिया के अंदर 2000 साल से। But every now and then, God raises up somebody to say, hey, we got to come back to the original लेकिन teaching. परमेश्वर हर एक शताब्दी में किसी ना किसी को उठाता है जो कि लोगों को जगाता है कि हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, Not going according to his ideas, but going back to God's word. और उसकी सोच विचार के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार। Let's go back to the word. हमें परमेश्वर के वचन में Let's जाना get है, these rails straightened out. और हमें रेल पटरियों को सीधा करना And है, let's have power in the engine. और इंजन के अंदर ईंधन भरना है। And that's what's happened throughout the years. और यही हुआ पूरे And इतिहास में। if you read Christian history, अगर जो आप मसीह इतिहास को पढ़ते हैं, and that's the reason why we have meetings like this, which are
not primarily for unbelievers. और इसीलिए हम इस प्रकार के जो है मीटिंग रखते हैं अविश्वासियों के लिए नहीं। There are so many meetings in India, evangelistic meetings for unbelievers. और बहुत सारे अविश्वासियों के लिए सुसमाचार का मीटिंग हमारे भारत देश में होता है। But there are very few meetings which are primarily designed to bring believers back to the teaching of the New Testament. लेकिन बहुत कम ऐसे मीटिंग का आयोजन किया जाता है जहाँ पे परमेश्वर के मसीह लोगों को परमेश्वर के वचन में वापस लाने के लिए प्रचार किया जाता हो। Evangelism is important. सुसमाचार की मनादी करना बहुत प्रमुख बात है। But building the church is important too. That's what Jesus said he came to do. और कलीसिया बनाना भी बहुत ही आवश्यक बात है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा है और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया है। When you see all the strife and quarreling and all in so many churches, लेकिन जब कलीसिया के अंदर बहुत सारे झगड़े वगैरह देखते हैं and the compromise और उसके बाद and जो the है worldliness और उसके बाद and संसारिकता the immorality among the young people और जवानों के बीच में जो अनैतिक कार्य होते हैं and Christians in spirit-filled churches watching pornography in the computers, और कंप्यूटर के अंदर जो है अनैतिक चीजें देखते हैं, what's the use of coming to such a church? और ऐसी कलीसिया में आने का क्या जो है क्या खासियत है? There are non-Christians who are purer than these people. और अविश्वासी लोग हैं जो कि इससे भी ज्यादा पवित्र हैं। Shall we bring them in here? क्या उनको हम यहाँ पर लाएं? That's the big question. यही एक प्रश्न है। You know, many people say we need to reach out, bring more people to Christ. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें सुसमाचार और सुनाना है और लोगों को लेकर आना कलीसिया। They've criticized me too. और वो मेरा भी जो है मुझ पर भी दोष They लगाते हैं। say if 99 flock are here, doesn't the shepherd go after that one sheep that is lost in the fold? और वो बोलते हैं Lost in कि the wilderness. वो बोलते हैं कि 99 अगर जो मेमने भेड़ यहाँ पे है और एक खोया हुआ है तो क्या हमें उसको नहीं ढूंढना चाहिए? I said, what is the use going and bringing that one sheep into 99 sheep who are fighting and tearing each other up? तो मैं ये बोलता हूँ कि क्या फायदा है वो एक भटके हुए भेड़ को यहाँ पर लेकर आए जहाँ पे 99 भेड़ आपस में लड़ रहे हैं। That safe, their sheep is actually safer there for a little while. तो मैं ये कहता हूँ कि वो जो बाहर निकले हुए जो भेड़ हैं वो ज़्यादा सुरक्षित हैं। Let's make this fold a little healthier, then we'll go and bring that sheep back in. तो पहले जो हमारे यहाँ पे जितने मेमने भेड़े हैं उनको पहले अच्छा तंदुरुस्त बनाए फिर उसको लेकर आए। You think this is my special doctrine? क्या आप लोगों को लगता है कि ये मेरा विशेष कोई सिद्धांत है? Many people don't read the Bible exactly. कई लोग जो है परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा का वैसा नहीं पढ़ते Let हैं। me show you what Jesus said in Luke 15. और मैं बताना चाहता हूँ कि लूका 15 में लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में क्या लिखा हुआ I है। believe in going after the lost sheep, और मैं भी विश्वास करता हूँ खोए हुए भेड़ के पीछे but I जाना। want to bring that sheep back into a healthy fold where that sheep will not get diseases it did not have when it came in. हाँ, मैं नहीं चाहता कि जो है कोई अच्छा तंदुरुस्त भेड़ को पकड़ के लाएं और कोई बीमार भेड़ों के बीच में लगाएं। And they tear up this new sheep that's come in. और उनके जो नए आए हैं उनके भय में रहें। Do you know, I have met people who have come from non-Christian religions to Christianity, born again, really. और मैंने उन लोगों को देखे हैं जो अविश्वासी थे, मसीहत नहीं थे और वो सही में मसीह को And अपने they जीवन में अंगीकार come to किया। some Christian church. और वो किसी मसीह कलीसिया में जाते हैं। They say, Brother Zach, I'm shocked to see the way these Christians behave. और उसके बाद वो लोग ये बोलते हैं कि ब्रदर भाई जैक मैं बहुत परेशान हो गया हूँ किस प्रकार से ये जो है बात करते हैं। My Hindu relatives don't behave like this. और मेरे हिंदू भाई बहन लोग भी ऐसा नहीं I'm करते हैं। ashamed to bring those Hindus into this to see what's happening here. और मुझे शर्म महसूस होता है अपने हिंदू भाई बहनों को कलीसिया में लेकर आने के लिए। There was one village down in South India और दक्षिण भारत में एक गांव है where there was only one church. वहाँ पे एक ही कलीसिया है। Some denomination church, I don't know what it was. हाँ वो एक कोई डिनोमिनेशन है मुझे याद नहीं है। Small village, everybody knew that in the church people were fighting with each other all the time. और वहाँ के पूरे गांव वाले जानते हैं कि वो कलीसिया में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता So है। there was one non-Christian man who somebody went and gave the gospel to him and he got converted. और वहाँ पे एक अविश्वासी व्यक्ति था जो मसीह नहीं था उसको किसी ने वचन सुनाया और वो विश्वास में आ He गया really became born again. और वो असलियत में एक जो है And उद्धार पाया He हुआ asked the व्यक्ति person who had brought him to Christ. बना। और उसने जो मसीह में लेकर आया उस व्यक्ति से पूछा, He said, now that I have become a Christian, उसने बोला कि अब मैं मसीह बन गया हूँ, do I have to join this church where they're always fighting with each other? क्या मुझे वो कलीसिया में जुड़ना चाहिए जहाँ पे हमेशा लड़ाई होता है? What answer will you give? तो आप क्या जवाब देंगे?
some people in this church are watching pornography. You want me to go and join this church? और इस कलीसिया में बहुत अनैतिक चीज़ें देखते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं उस कलीसिया में जाऊं? Yeah, they sing well and they preach well and all, but I'm not interested in that. हाँ, वो लोग जो है अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई रुचि नहीं। See Luke 15. लूका रचित 15 अध्याय। How does God, Jesus, describe the fold into which this sheep must be brought? और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि जो खोया हुआ भेड़ है उसको किस प्रकार के झुंड में लेकर आना है। He किस says in प्रकार verse से। 4, you got 100 sheep and you've lost one of them. और यहाँ पे 4 में लिखा है कि तुम में से किसी का अगर जो 100 भेड़ है और उसमें से एक खो जाए, And he leaves the 99 in the pasture. तो 99 को जंगल में छोड़कर। Okay. Now, what are these? How does Jesus describe these 99 people? That's important. और यहाँ पे देखना है कि प्रभु यीशु मसीह इस 99 भेड़ के बारे में क्या कह रहा What है, type of church is this 99 people? और ये 99 लोग किस प्रकार की Into which कलीसिया you're है, bringing this lost sheep. और किस प्रकार की कलीसिया में लेकर आ रहा है। He said it. वहाँ पे वो लिखा हुआ है, Verse 7. 7 में लिखा है, 99 righteous people who need absolutely no repentance from any sin in their life. हाँ यहाँ पे लिखा है कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में कहता है जिनको अब जो है पश्चाताप करने की जरूरत नहीं या मन फिराने की जरूरत नहीं। Have you ever met people who don't need to repent of anything? क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं? You say there's nobody like that in the world. तो आप कहेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस There संसार are. में। ऐसे हैं, They're not people who are living as pure as Christ, वो ऐसे लोग नहीं है कि मसीह की तरह वो पवित्र रहते हैं, but they are people who repent all the time. लेकिन ऐसे लोग हैं जो हमेशा मन फिराते They रहते repent हैं every day. और हर दिन वो जो है मन That's why फिराते they हैं। don't need any repentance. इसीलिए उनको मन फिराने की जरूरत नहीं है। It's like saying, every time I get a thorn into my foot, I pull it out. इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई कांटा मेरे पाँव में घुसे उसी टाइम उसको निकाल That means देना। anytime you see me, there'll be no thorn in my foot. इसका मतलब जब भी आप मेरे पाँव को देखेंगे वहाँ पे कोई भी जो है कांटा नहीं है। Can't many of you say that? All of you perhaps? क्या आप में से कई लोग, सब लोग नहीं बोल सकते हैं क्या? Can't all of you give this testimony? You will never find me with a thorn in my foot. क्या आप सब लोग ऐसा गवाही दे सकते हैं कि कभी भी आप मेरे पाँव में कांटा नहीं देखोगे? Is that such a high standard? क्या ये बहुत ही ऊंचा मानदंड है? Most sensible humans live like that. हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं। If a thorn gets into your foot, you don't leave it there even for 1 minute. हाँ, जैसे ही आपके पाँव में कांटा घुस जाता है तो आप एक क्षण भी नहीं रुकते, उसको निकाल देते You don't हैं even wait for 5 seconds. और 5 सेकंड का भी इंतजार नहीं करते। You pull it out. हाँ, एकदम से निकाल देते हैं, you know if you leave it there, your foot will get infected. क्योंकि आप जानते हैं कि जो वो कांटे को वहीं पे रहने दोगे तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। That's what it means by constant repentance. इसी को कहते हैं लगातार जो है मन फिराना, It पश्चाताप doesn't करना। mean I never fall. इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं But गिरता I हूँ, don't even wait 5 seconds before setting it right. लेकिन मैं इंतजार नहीं करता 5 सेकंड का भी कि उसको जब तक मैं I उसको सही ना करूं। immediately repent and get rid of it. मैं उसी समय पश्चाताप करता And हूँ और सही over हो a जाता period हूँ, of time, I become more careful of getting such thorns into my और foot. उसके बाद मैं और ज्यादा जो है सावधान हो जाता हूँ कि वैसे कांटे मेरी अंदर और ना And if घुसे। I've hurt somebody, I immediately apologize. और जैसे ही कोई सुन लेता है तो मैं उससे माफी मांगता हूँ, I don't even wait 5 seconds. और मैं 5 मिनट भी नहीं इंतजार, If I सेकंड hurt भी my इंतजार नहीं wife, करता। if I hurt my wife with a word that was not wise, और मैं अपनी पत्नी को सुनता हूँ जो बुद्धिमानी से कभी अगर जो बात ना करे तो, then no, if I said something, अगर जो मैंने कुछ बातें then I कहा immediately apologize तो when I realize it. उसी समय मैं माफी मांगता हूँ, अगर जो I जैसे pull out मुझे, that thorn. और मैं उस कांटे को निकाल देता हूँ। So I live all the time, every single day, without any thorns in my body. और मैं हर क्षण बगैर कांटे के जीवन जीता हूँ। Can't you live like that? क्या आप लोग भी वैसा जीवन नहीं जी Actually, you सकते? all are living like that right now. और आप वैसा जीवन जी रहे हैं इस समय, Why can't we do the same thing with our conscience? और हम अपने विवेक में भी ऐसा क्यों ना करें? Only one reason. केवल एक कारण, We are too proud क्योंकि हमारे अंदर वो घमंड है to acknowledge कि वो माने that a thorn got into my conscience. कि वो कांटा मेरे विवेक में Too प्रवेश किया proud to है, go and apologize to somebody. और बहुत घमंड महसूस करते हैं, इसलिए हम दूसरों के पास जाके माफी नहीं मांगते हैं। But there are a few लेकिन कुछ ऐसे who हैं have no need of repentance. उनको जो है पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, Because anytime you see them, they've already repented of their last sin. क्योंकि जब भी आप उनको देखेंगे उन्होंने पिछले पाप से माफी मांग लिया They're है, constantly free from sin. और वो हमेशा जो है लगातार पाप से मुक्त हैं। And because they live like that, क्योंकि वो वैसा जीवन जीते हैं their life becomes better and better and better. और उनका जीवन जो है अच्छा और अधिक They अच्छा होता gradually है, overcome getting offended. और वो जो है और ऊपर उठते हैं, And they get overcome anger और वो गुस्से के They ऊपर overcome काबू कर लेते jealousy. हैं, और जलन के ऊपर काबू कर लेते and an हैं, unforgiving spirit. और ऐसा
आत्मा जो माफ नहीं कर पाता है They उसके ऊपर जय प्राप्त कर लेते fought हैं, with pornography and overcome that. और फोर्नोग्राफी हर एक चीज से जो है विजय प्राप्त कर लेते They हैं, fought with dirty thoughts and gradually overcame that. और उनके मन में जो गंदे विचार आते हैं उन सब के ऊपर वो जय प्राप्त कर लेते हैं। You see them after 10 years, और उनके 10 साल के बाद उनको मिलो, they are not like they were 10 years ago. और 10 साल पहले जैसे थे वैसे नहीं है They're वो, not perfect yet. अभी वो बिल्कुल सिद्ध नहीं हुए, They are pressing on to perfection. लेकिन वो सिद्धता की ओर बढ़ रहे You हैं। know, it's like a child that's just joined kindergarten, the age of maybe 4. हाँ, ऐसा जैसे कि एक बच्चा जो है जो प्राथमिक शिक्षा पाने के लिए जब 4 वर्ष के हैं उस समय विद्यालय में जाते हैं, You ask him, son, what do you go to school for? तो उनसे पूछे कि आप स्कूल में क्यों जाते हैं? He says, uncle, I want to get a PhD. हाँ अंकल, मुझे पीएचडी पाना है। I love that. A 4-year-old saying, I want to get a PhD. 4 साल का बच्चा कहता है कि मुझे पीएचडी पाना है। When are you going to get it, son? Next year? हाँ, तुम्हें ये कब मिलेगा? क्या अगले साल? Oh, no, it'll take me 20, 25 years. हाँ, मुझे करीबन 20-25 साल लगेंगे। How are you going to get it? और आपको कैसे मिलेगा? Every year, I'm going to go to a higher standard. हर साल मैं एक कक्षा को छोड़ के उससे बड़े कक्षा में जाऊंगा, And slowly I'll climb this ladder and reach a PhD. और इस प्रकार से इस सीढ़ी को मैं चढ़ के धीरे धीरे ऊपर This पहुंचूंगा। is how sanctification is in the Christian life. और इसी प्रकार से पवित्रता हमारी कलीसिया में आता है, That is how the garden never becomes a wilderness. और इसी प्रकार वो बगीचा कभी भी जंगल And नहीं it will बनता, become better and better garden as time goes by. और जैसे जैसे समय बीतता है वो बेहतर बगीचा बनता Not only जाता our है। personal life, ना केवल हमारा व्यक्तिगत but our जीवन, family life हमारा पारिवारिक and our जीवन church. और हमारी कलीसिया, That's the type of church I want to be a part of. और वैसा कलीसिया का मैं जो अंग बनना चाहता हूँ। And that's the reason why we have these meetings. और इसीलिए हमने ये मीटिंग आयोजित किया है। We'll have a break now अभी हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे and then meet again. और उसके बाद हम मिलेंगे Is it half an hour later? Half an hour later. आधे घंटे बाद। Let's bow before in prayer. आइए हम अपने सरों को झुकाएं प्रार्थना में। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to remember what we have heard. प्रभु जी, जो हमने सुना है वो हमें याद करने के लिए मदद कर। We know the devil's a great expert at taking away what we heard. और हम जानते हैं कि शैतान बहुत ही चालबाज है, वो हमारे सुने हुए वचनों को चुराने के लिए, We want to watch against that. लेकिन हम उनसे सतर्क रहना चाहते हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन।